I was too good in mathematics, but I was thinking like that mathematics का हमारी लाइफ में तो काम ही नहीं है यार. Why? Hey everyone, how are you? I hope you all are doing well. And in this particular video, we're gonna change the you can say different perspective of mathematics, that how we are seeing mathematics in our life. We see that because I was too good in mathematics, and I was also saying like that यार मेरे life में mathematics का use कहाँ है? Where I'm gonna use this mathematics? But once I just interacted with this Sujata ma'am, and I just see that the perspective of how she sees the mathematics. Even she is a mathematics teacher. That's why she told me like that, and I was like, oh my god, it's blown my mind. Oh, okay, so that's how we can change our perspective. If you have that kind of perspective in your life, that if you're reading a mathematics and you're just thinking like that, यार maths का तो मेरे life में कोई use ही नहीं है, no, you have actually. So before you're gonna jump into the video, make sure you just subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notification when I upload any new video. And see, this is a recorded session that I did on my IGTV, Instagram TV, or live session, and that was literally too good session with Sujata ma'am. And if you're not connected with me on my Instagram, do connect with me there, because I take a daily V show. On daily V show, I took a random person. Sometimes it's planned, sometimes it's unplanned, and that session was gonna be a rocking session. I can say that I'm enjoying, I'm learning a lot of more things from there. So if you're not connected there, do connect me there and just enjoy the session as well, right? So now let's begin. Could you give a small intro here? So that all. Yeah, I'm Mrs. Sujata, and I'm one. I was working from 12 years. मैं 12 साल से जॉब में थी, but at last I decided to jump into entrepreneurship. So I'm now running my own school and own coaching center also. Means that is SIP Abacus, that improves the concentration and it enhances the students to do better in speed writing, even if arithmetic improvement. So all these things I am doing. So one thing I want to tell here, when I was a teacher, means now also I'm a teacher. So SIP Abacus SIP brand is a very means international brand. So you can search it. It is a very good planned Abacus system academy where everything is very properly planned. So we are taking the students from 6 to 12 years and we are training them. Means we are doing the fundamentals, means clearing the fundamentals, and we support them and we train them. सो जनरली क्या देखा जाता है कि बच्चों को ट्रेन करने के लिए क्या होता है कि बड़ों को ट्रेन किया जाता है. तो ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे बच्चे दोनों हाथ से, कभी सुना नहीं होगा कहीं पे कि दोनों हाथ से कैसे लिखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं. तो पहले बच्चे आते हैं तो लेफ्ट हैंड में 20 टाइम्स मीन्स 20 नंबर लिख पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो 1 मिनट में 100 टाइम्स लिख पाते हैं. तो ये एक स्पीड राइटिंग है. और एक चीज हम लोग करवाते हैं, जैसे कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए साम्स को वो लोग याद रखते हैं. जब हम डिक्टेट करते हैं साम्स को याद रख के वो लोग विजुअलाइज करके वो सम को कर लेते हैं. सो उससे क्या होता है, उन लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ता है. एंड वी ऑल नो कंसंट्रेशन नीड इन ऑल फील्ड. इवन if you are a sport person also, then also you need that. Okay, right. Another thing, जैसे कि अभी मैं अपना स्कूल भी चला रही हूँ, तो अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन मास्टरी में आने के बाद मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है कि मैं अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन कर पाती हूँ, उनके सामने अच्छे से बोल पाती हूँ. बहुत सारा चीजें मुझे हेल्प करता है. मैम, about your journey that while you were in 12th class and maybe in BSc, and then a little journey about where we can learn actually. Okay, तो एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी तो मैं इंग्लिश मीडियम को बिलोंग नहीं करती हूँ. बट तब मेरे पापा एक चीज हमेशा बोलते थे. मेरे पापा अभी नहीं है इस दुनिया में, बट वो हमेशा एक चीज बोलते थे
कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना पड़ता है, कोई भी। जैसे वो हमेशा एग्जांपल देते थे कि अमिताभ बच्चन को देख लो, वो इतना कॉन्फिडेंस है अपनी एक्टिंग को लेके, तो इसीलिए वो फेमस है। राइट। तो वैसे ही तब से मैंने माइंड में रखा था, मुझे एक ही सब्जेक्ट अच्छा लगता था, वो था मैथ। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैथ्स में कुछ करूंगी। लेकिन ओके। पता नहीं हुआ, लेकिन साइंस में तो पढ़ के आई। लेकिन पापा का एम्बिशन था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, वो मैं नहीं बनी, मुझे नहीं बनना था। तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए इन एचआर, बट उसके बाद मैंने जॉब करना, फैमिली प्रॉब्लम था तो जॉब नहीं कर पाई। तो मैंने एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो वहां से मेरा जो टीचिंग का जो मतलब बोला जाता है, अगर आपको कुछ करना है ना, अगर आपके अंदर कोई पैशन है करने के लिए, तो एक काम करो, जीरो से ही स्टार्ट करो। तो मैंने वहां पे काम करना स्टार्ट किया। यू कांट बिलीव, उस टाइम मुझे 3000 रुपीज सैलरी था मेरा, सो 12 years बैक। तो वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया। यस, मैं मतलब 3000 रुपए के लिए 8 घंटा काम करती थी, बट आई वॉज हैप्पी दैट टाइम कि मैं लर्न कर रही थी। एवरी डे आई वॉज लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स। सो मुझे उसके बाद लगा कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। तो अभी जो मेरा जर्नी था, कि कोई बोलता है कि टीचिंग में कुछ नहीं है, कि एक नॉबल प्रोफेशन है, उसमें पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बट इसमें इतना सेटिस्फेक्शन होता है ना काम करने का, वो जो एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। अगर एवरीडे आप कुछ सिखा रहे हो, किसी का कुछ हैम्पर नहीं कर रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये जो बच्चे होते हैं इतने इनोसेंट होते हैं, तो उनके साथ मिलके रहने का मजा ही अलग है। तो मैंने अपने प्रोफेशन को उस टाइम एंजॉय किया। तो देन आफ्टर आई मीन्स मैंने बीएड भी कंप्लीट किया। वहां से फिर मैं एक छोटे से टाउन में थी, वहां से मैंने भुवनेश्वर में शिफ्ट किया। वहां पे एक बड़ा सा स्कूल में काम कर रही थी मैं, वहां पे 5 साल मैंने काम किया। वहां से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि मैं खुद का स्कूल चला सकती हूँ और खुद का वर्कर्स सेंटर भी चला सकती हूँ। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मेरा स्मार्टनेस को देख के या फिर मेरी नॉलेज को देख के मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला, और मैंने उसमें जॉब भी किया। और अभी मैं खुश हूँ कि मतलब जो भी कर रही हूँ खुद के लिए कर रही हूँ। जो 12 साल मैंने जो 8-8 घंटा मैंने 12 साल दिया था किसी और कंपनी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर मैं खुद की कंपनी के लिए देती तो शायद मैं अभी टॉप लेवल पे होती। तो इट्स हैपेंस, बट कोई बात नहीं, मैंने सीखा है, बहुत चीज सीखा है लाइफ में इससे। अभी मेरे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन रैंडमली आ रहे थे, तो अभी मैं कितने तो भूल गया, बट स्टिल वन क्वेश्चन दैट आई हैव, at time we have a lot more options, like we can go for physics, chemistry, you can say biology. Then why you choose mathematics? I mean, is there any kind of reason? एक्चुअली जब मुझे रट्टा लगाना अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो एक चीज है, कभी भी एसएसटी पढ़ना होता है तो उसको रट्टा लगा के याद रखो, अकबर का क्या हुआ था उसको याद रखो। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो हर सब्जेक्ट एक साइंस है, हर सब्जेक्ट एक साइंस है, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथ में इसलिए था कि एक पागलपन था मेरे में। मैंने अपनी लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं लिया, जो भी पढ़ा मैंने खुद पढ़ा। मेरी मम्मी, हाँ, मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया, मैंने खुद पढ़ा है। और मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी 10th स्टैंडर्ड तक, वो मुझे पढ़ाती थी। जो फाउंडेशन है उसने मेरा क्रिएट कर दिया था, उसके बाद मैंने खुद पढ़ा है। सो ट्यूशन मैंने कभी नहीं लिया, खुद से पढ़ा है। तो अभी भी क्या होता है ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको लगता है कि मैंने कल ही पढ़ा था इसको, जैसे लगता है कि उस टाइम में पढ़ा था। तो ऐसा होता था, एग्जाम अगर नहीं होता है तो मैं सोने जाती हूँ तो उसी को सोच सोच के सोती हूँ, और वो नहीं होता है, उसका सोल्यूशन मेरे दिमाग में आता नहीं है। लेकिन जब वॉशरूम में जाके बैठती हूँ सुबह, वो उसका सोल्यूशन निकल आता है। मतलब मैंने रात भर जो सोचती हूँ, मेरा पैशन इतना था मैथ्स के पीछे कि वो मेरा ऐसा ही था। तो उसमें से मैंने क्या सीखा, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, आपको लाइफ के जो लाइफ स्किल होता है बहुत सिखा जाता है।
कैसे आपको, मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम है, अभी है कि आपके रूम में कोई नहीं है, गैस खत्म हो गया है, आपको खाना बनाना नहीं आता है, कोई देने वाला नहीं है, तो उस टाइम में मैथ काम आती है। हम लोग सोचते हैं मैथ कैसे काम आएगा, कोई इंजीनियर नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है, तो उसको तो मैथ पढ़ना ही नहीं चाहिए। बट इट इज टोटली रॉन्ग। मैथ क्या होता है, वो सिखा देता है कि लाइफ में कितने सारा प्रॉब्लम आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब अगर एक सम का आप 10 सोल्यूशन निकाल सकते हो, तो लाइफ का एक प्रॉब्लम होता है तो उसका भी 10 सोल्यूशन आपके पास आता है। राइट। इवन मैम आई जस्ट वांट, ओके मैम चलेगा। एक मैंने वीडियो आपका देखा था, आपने मैथ्स को ऐसे रिलेट करा, शायद किसी ने पूछा था उसमें कि मैथ्स हमारे लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, मैथ्स सिर्फ पढ़ने के लिए या हमारे लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, एंड द वे यू जस्ट गिव द आंसर, लाइक मैं लिटरली मतलब यार ऐसा भी हो सकता है, मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसे। सो दैट वाज लिटरली टू गुड, आई से दैट। सो कुड यू एक्सप्लेन दैट? हाँ, मैथ्स तो वही मैं बता रही हूँ ना, जब आप मैथ्स करते हो, मैथ्स का मान लीजिए एक सम होता है, जब हायर क्लासेस में हम लोग जाते हैं तो आपने तो पढ़ा है मैथ्स, तो उसको क्या होता है ना, एक सम का 5 उसका सॉल्यूशन होता है, वे होता है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो कोई, हम लोग कहीं पे घूमने गए हैं, छोटा बच्चा है, उसको वो कहीं पे खो गया, मतलब मान लीजिए कहीं पे घूमने गया है, उसके पापा का हाथ छूट गया है, लेकिन उस टाइम अगर वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे होटल का नंबर याद करना है, या किसी का फोन लेके पापा को फोन करना है, या फिर जाके कहीं पे अनाउंसमेंट करना है, तो ये मैथ ही है। मैथ में तो वही होता है ना, उसका सोल्यूशन हम लोग निकालते रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, काम करता है उस टाइम, राइट? हाँ, तो उस टाइम में क्या होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो हम अगर मैथ में अच्छे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन सोचते रहते हैं। तो लाइफ में भी वही होता है, एक प्रॉब्लम आता है तो हम लोग उसको ये नहीं सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ है, तब हम लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये करती हूँ कि इसने क्यों किया, किसने किया, क्यों हुआ, भाड़ में जाए ये सारा, पहले मैं सॉल्व कर लो कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए मेरा। तो यही सीखा जाता है मैथ्स। पता नहीं बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं, बोलते हैं मैथ में क्या रखा है, बट मैथ में यही रखा है सच्ची में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, मैम आपका स्टोरी टेलिंग टेक्निक इतना मतलब जबरदस्त कैसे है? Like I just watch every video, like the way you connect all the dots, all the thing, like it's literally too good, I can say that. एक छोटी सी चीज बताओ ना, जब हम लोग कभी क्या होता है ना, कोई शू होता है, आपका कोई शू है, आप उसको दो महीने तक पहनते नहीं हो, ठीक है, 2 महीने के बाद उसको पहन के आप बाहर जाते हो, तो क्या होता है, वो या तो मतलब निकल जाता है पैर से, या फिर टूट जाता है, ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं बहुत सारा शू खरीद के रखती हूँ, उसके बाद उसको पहनती नहीं हूँ, लेकिन 6 मंथ के बाद उसको पहन के निकलती हूँ तो वो टूट जाता है रास्ते में। तो कभी एक टाइम मैंने सोचा कि अरे उसको क्या इंसल्टिंग फील हो रहा है, मैंने इतने दिन तक उसको पहना नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आया उस टाइम कि ये क्या उसको इंसल्टिंग फील हो रहा है, कि अगर मुझे कोई पूछेगा नहीं 6 महीने तक तो ऑब्वियसली मुझे खराब लगेगा कि अरे कैसा दोस्त है, मुझे पूछा नहीं। तो वही मैंने मतलब वही रियल लाइफ को मैं हमेशा कनेक्ट करती रहती हूँ। और एक चीज है, मेरी एक नानी थी जो बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी बताती थी, और उसके साथ हमको मतलब समझाती थी कि रियल लाइफ यही होता है। तो स्टोरी उनसे मैंने इंस्पायर्ड मतलब हुई थी। जैसे कंसंट्रेटिक सर्कल्स अगर बोलूं, तो उसको मैंने क्लास में पढ़ाने के लिए मैंने बच्चों को बोला, एक गोट था, एक टाइगर था, तो मैंने उसको क्या किया, दोनों को दो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे पता नहीं है, उनको बांध दिया, तो ताकि उनका जो रस्सी का लेंथ इतना था, ऐसे रखा था कि कोई किसी के पास नहीं आ पाएगा, टाइगर उसके पास नहीं आ पाएगा। तो उसको जब मैंने ऐसे स्टोरी सुना तो बच्चों को इतने जल्दी से याद रह गया कि ये हाँ
गोट अभी इस मतलब सराउंडिंग में घूमता रहेगा और टाइगर उसके पास नहीं आ पाएगा। तो ये कंसंट्रेटिंग सर्कल का हो गया। तो वैसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास टीचिंग नेट नहीं होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओ? फिंगर दिखा दो यार, फिंगर दिखा दो, हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, तो वो दिमाग में ना स्पॉन्टेनियसली आता है। अगर आप सोचते हो कोई चीज को, जैसे बोलो कि मैथ में वही सिखाते तो हैं, तो स्टोरी टेलिंग वही है और कुछ नहीं है। Even in this question, whatever you have talked, you just include your storytelling. तीनों जो भी आपने story include, सारा story मतलब like it's connecting. That's why I say that your storytelling is good actually. Thank you so much. Next question that I have, ma'am, when you join the communication mastery course, and what is the motive behind that? हाँ, कम्युनिकेशन मास्टरी में जब एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी, मैंने जब जॉब तो छोड़ दिया, अपना काम भी कर रही थी, ये दोनों को संभालते संभालते कुछ टाइम और बच जाता है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो जैसे बच्चे मुझे उस टाइम में कॉल करके पूछते थे, मैम आप क्यों जॉब छोड़ दिए, हम लोग आपसे कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। मीन्स तब मैंने बच्चों को बोला ठीक है एक काम करो, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, क्वेश्चन पूछो, मैं कॉल बैक मतलब आप लोगों को करके भेजती हूँ। कुछ दिन मैंने ऐसे किया भी। तो उसके बाद मुझे इतना बोर लगा कि दिन में क्या देखती हूँ, दिन भर सोने नहीं देते, कोई ना कोई बच्चा कॉल कर रहा है। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि बच्चे मुझे इतना मिस कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना जो कंसेप्ट है, बच्चों को पसंद है तभी ना मुझे मिस कर रहे हैं। तो वो जो कंसेप्ट है, मैंने जो इतना सारा चीज बच्चों को अच्छे से समझाया है, क्यों ना मैं छोटा छोटा वीडियो बना के यूट्यूब में अपना एक चैनल करूँ। बट सॉरी मैं अब तक कर नहीं पाई, टाइम नहीं हो रहा है, थोड़ा शेड्यूल टाइट है, क्योंकि अभी जितना हम लोग काम करते थे उसका डबल ट्रिपल काम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है, सारा सेशन चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग टाइम, सफिशिएंट टाइम। बट आई एम प्रिपेयरिंग माई स्क्रिप्ट। जब मुझे ना पहले लगा था एक डिजिट क्या होता है, अगर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, पहले तो मैंने लिखा कि ये तो 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, डिजिट यही होता है। लेकिन मैंने जब स्क्रिप्ट लिखा ना, तो देखा कि पूरा पेज हो रहा है। तो जैसे ही जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखती जा रही हूँ, तो मैं फिर से सीख रही हूँ। तो ये और एक लर्निंग प्रोसेस हो रहा है मेरे लिए। ये वही सोच के मैं आई थी कम्युनिकेशन मास्टरी में। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, या फिर अपनी मदर टंग में बोल रहे हो। बट क्या बोलोगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो बोलोगे क्या? कोई भी सब्जेक्ट में बोलो, लेकिन अच्छे से वो नॉलेज को आप रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वही सोच के मैं आई थी कि यहाँ पे मुझे क्या हेल्प मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा, शायद मैं इतने लोगों के सामने बात कर पाऊंगी, बना पाऊंगी, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। वही सोच के आई थी। That's how we need to change the perspective, not even about mathematics. If you think like that, this is the only thing, this is the only perspective. No, there are a lot of perspective about a single thing, right? So you don't have to be stick with a single perspective in our life. We have to change ourselves, right? So that's it for as of now for that particular video. I hope you got the value, and if you got the value from this video, please do share this video to another people so that they get benefited as well, right? And as always, keep smiling and be happy, and thank you very much.